Good morning, students. In the previous class, we have studied about Tughlaq dynasty. Today, we are going to study about Sayyid dynasty, Lodi dynasty, and administration in the Sultanate. The Sayyid dynasty, 1414 to 1451 CE. When Timur left Delhi, he appointed Khizr Khan as his viceroy. Khizr Khan went on to establish the Sayyid dynasty and took over as the Sultan of Delhi in 1414 CE. He was succeeded by his son Mubarak Shah in 1421. Yahya bin Ahmad Sirhindi's book Tarikh-e-Mubarak Shahi gives a detailed account of Mubarak Singh's reign. Mubarak Shah was succeeded by his nephew Muhammad Shah. He was succeeded by his son and last ruler of the dynasty Alauddin Alam Shah. जब तिमूर ने दिल्ली को छोड़ दिया था तो उसके बाद उसने वहाँ पे अपने एक वाइस रॉय खिज़्र ख़ान को अपॉइंट किया था। खिज़्र ख़ान ने इस्टेब्लिश की थी सैयद डायनेस्टी और दिल्ली का सुल्तान बन गया था 1414 CE में। उसके बाद जो उसका बेटा मुबारक शाह 1421 में दिल्ली का सुल्तान बना। यहिया बिन अहमद सिरहिंदी की बुक तारीख़ मुबारक शाही में मुबारक शाह के जो रीन था, जो पूरा उसका शासन काल था, उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। मुबारक शाह के बाद उनका जो नेफ्यू था मोहम्मद शाह, वो दिल्ली का सुल्तान बना और उसके बाद जो है उनका बेटा मतलब मोहम्मद शाह का बेटा और साथ ही साथ ये लास्ट रूलर थे डायनेस्टी के अलाउद्दीन आलम शाह। ओके, सो जो सैयद डायनेस्टी थी वो 1414 से लेकर के 1451 CE तक इस्टेब्लिश रही। The Lodi dynasty 1451 to 1526 CE and decline of the Sultanate. In 1451, Alauddin Alam Shah abdicated the throne. This gave Bahlol Lodi, the governor of Sirhind, Punjab, the opportunity to become the new Sultan of Delhi. The new dynasty that he founded came to be known as the Lodi dynasty. It was the first Afghan dynasty that comes to power during the Sultanate period. Bahlol died in 1489 and was succeeded by his son Sikandar Lodi. He founded the city of Agra in 1503 CE. He was succeeded by his son Ibrahim Lodi in 1517 CE. In the first battle of Panipat, fought in 1526 CE, Ibrahim Lodi was defeated by Babur. It dealt the final fatal blow to the Delhi Sultanate. 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह ने जो है वो थ्रोन को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो बहलोल लोदी जो कि गवर्नर था सिरहिंद पंजाब, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो दिल्ली का न्यू सुल्तान बन जाए। बहलोल लोदी ने एक न्यू डायनेस्टी को फाउंड किया था जिसे हम लोदी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ये पहली अफ़गान डायनेस्टी थी जो कि पावर में आई थी सल्तनत पीरियड के टाइम पे। बहलोल की डेथ जो है 1489 में हो गई थी और उसके बाद जो है दिल्ली का सुल्तान वो उसका बेटा सिकंदर लोदी बना था। सिकंदर लोदी ने सिटी ऑफ आगरा को फाउंड किया था 1503 CE में। सिकंदर लोदी के बाद जो नेक्स्ट सुल्तान बना वो उसका बेटा था इब्राहिम लोदी 1517 CE में। जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 CE में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इसकी वजह से जो दिल्ली सल्तनत था उसको एक डेडली हिट आप बोल सकते हो या फिर स्ट्रोक मिला था इसी के बाद, इस पानीपत बैटल के बाद। एडमिनिस्ट्रेशन इन द सल्तनत। द सुल्तान The Sultan was at the center of the Sultanate administration. He protected the empire against external attacks and was responsible for maintaining law and order. He acted as the commander-in-chief of the army and the chief justice of the Sultanate. जो सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें सबसे पहले सुल्तान होता था। सुल्तान जो है वो सेंटर होता था सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन में और ये प्रोटेक्ट करता था एम्पायर को जितने भी एक्सटर्नल अटैक्स होते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होता था कि वो अपने एम्पायर में जो है वो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे। ये कमांडर इन चीफ था आर्मी का और साथ ही साथ चीफ जस्टिस होते थे सल्तनत के। नोबल्स एंड ऑफिशियल्स। The Sultan's court consisted of officials who were responsible for effective functioning of the administrative machinery. The Wazir and his deputies looked after the issues relating to income, expenditure, collection of revenue and control of the revenue. The Arizi Mumalik and his deputies looked after the recruitment of soldiers, their training and equipment. The Wakili Dar was responsible for looking after the affairs relating to the household of the Sultan, the palace guards and the personal assistants. The Amiri Hijab was the master of ceremonies at the court, while the chief Qazi headed the justice department.
नोबल्स एंड ऑफिशियल्स जो थे, जो सुल्तान था वो सुल्तान के कोर्ट में ऑफिशियल्स होते थे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। वज़ीर जो है वो डिप्यूटी वज़ीर और उसके डिप्यूटी जो है वो सारे इश्यूज़ जो कि इनकम से रिलेटेड होते थे, इनकम एक्सपेंडिचर, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो कर इकट्ठा करना हुआ और कंट्रोल जो रेवेन्यू का होता था, वो वज़ीर और उसके डिप्यूटीज़ मिलके करते थे। डीजी ममालिक और उनके जो डिप्यूटीज़ थे वो जो सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट होता था उसको देखते थे और साथ ही साथ उनकी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट को भी देखते थे। वकीली दर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते थे, जो भी अफेयर्स हैं, जो सुल्तान के हाउस होल्ड से रिलेटेड अफेयर्स हैं, जो पैलेस गार्ड्स हैं और जो पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, उनके बारे में जो है रिस्पॉन्सिबल वकीली दर होते थे। अमीरी हिजाब जो है वो मास्टर होते थे, जो भी सेरेमनीज़ होती थी कोर्ट की उसके, और साथ ही साथ चीफ गार्डी जो है वो हेड करते थे जस्टिस डिपार्टमेंट को। The nobles occupied civilian and military positions in the Sultanate. They assisted the Sultan in the charge of his responsibilities as the ruler of the empire. In terms of rank, the Khans occupied the top position, followed by the Maliks and Amirs. The nobles got their salaries from the revenue assigned to them as per the Ikta system. The land resources of the Sultanate were divided among the nobles in lieu of cash for their services. Iqtadars collected taxes from the farmers and used them to maintain the army. Slaves had a huge presence in the royal household. They served as personal assistants as well as administrative officials with a view to meeting the requirements of the royal palace. Karkhanas or workshops under Maliks were set up. In these karkhanas, various items such as cloth, painting, and other articles were produced. Occasionally, military goods were also produced in these workshops. नोबल्स ने सिविलियन और मिलिट्री पोजीशन सल्तनत में ऑक्यूपाई की थी। वो असिस्ट करते थे सुल्तान को जब भी उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ रूलर ऑफ एम्पायर छोड़नी होती थी तब। अगर हम रैंक की बात करें तो खान्स ने टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई की थी, उसके बाद मलिक्स और उसके बाद अमीर्स होते थे। जो नोबल्स थे उन्हें उनकी सैलरी, जो भी रेवेन्यू उन्हें असाइन किया जाता था वहीं से मिलती थी। इक्ता सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो लैंड रिसोर्सेज थे सल्तनत के वो डिवाइड किए गए थे नोबल्स में जिनमें उन्हें कैश मिलता था उनकी सर्विसेज के लिए। इक्तादार्स कलेक्ट करते थे टैक्सेस को फार्मर्स से और फिर उसको यूज़ करते थे आर्मी को मेंटेन करने के लिए। स्लेव्स का एक बहुत ही बड़ा प्रेजेंस था रॉयल हाउस होल्ड में। वो पर्सनल असिस्टेंट्स के साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी होते थे और एक व्यू था मतलब रॉयल पैलेस की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए कारखाना या फिर वर्कशॉप जो कि अंडर मालिक्स होती थी उसको सेटअप किया गया। और इन कारखानाज में बहुत सारे आइटम जैसे कि क्लॉथ, पेंटिंग और अदर आर्टिकल जो है वो बनाए जाते थे। कभी कभी मिलिट्री गुड्स भी प्रोड्यूस किए जाते थे वर्कशॉप्स में। आर्मी The army was a significant part of the Sultanate because it aided the Sultan to stay in power, expand and defend his empire. The army comprised of the infantry or foot soldiers, cavalry or horse soldiers, archers and elephants. आर्मी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट था सल्तनत का क्योंकि ये सुल्तान की हेल्प करता था कि सुल्तान अपने पावर में रहे, एक्सपैंड करे और साथ ही साथ अपने एम्पायर को डिफेंड करे। आर्मी में जो है उस टाइम पे सल्तनत के टाइम पे इन्फेंट्री या फिर फुट सोल्जर्स होते थे, कैवलरी या फिर हॉर्स सोल्जर्स, आर्कर्स और एलिफेंट्स होते थे। हॉर्सेस ऑफ फाइन क्वालिटी रिसीव्ड ग्रेट अटेंशन एंड देयरफॉर they were imported from Arabia. Alauddin Khilji maintained a detailed description of each soldier known as Chehra. Each horse was branded in his army known as Dag. During his reign, land revenue was collected in cash. Soldiers were also paid in cash. फाइन क्वालिटी के हॉर्सेस थे, उन्हें बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी गई, इसीलिए उन्हें अरेबिया से इंपोर्ट किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन रखा था हर सोल्जर का जिसे चेहरा के नाम से जाना जाता था और जो हॉर्स था उसको ब्रांड किया जाता है आर्मी में एज दाग। उनके शासनकाल में जो है लैंड रेवेन्यू वो कैश के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था और सोल्जर्स को भी जो सैलरी दी जाती थी वो कैश में दी जाती थी। डिवीजन ऑफ द सल्तनत द दिल्ली सल्तनत वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस नोन एज सूबास विच वर फर्दर डिवाइडेड इंटू शिक्स। Parganas were the subdivisions of the sheikhs which comprised several villages. The province was headed by a governor or mukti while the shikhdar was the head of a sheikh. The amil was the head of the pargana. The landowners known as khuts and muqaddams were the most important officials in the village. The village accountant or patwari maintained records of land, crops and taxes to be paid. जो डिवीज़न था सल्तनत का वो इस तरीके का सा था। जो दिल्ली सल्तनत था वो डिवाइडेड था प्रोविंसेस में जिन्हें सूबास के बारे में जानते थे और सूबास फर्दर डिवाइडेड थे शिक्स में।
शिख्स का डिवीज़न हुआ था परगनाज में, जिसमें सेवरल विलेजेस आते थे। जो प्रोविंस थे उनका हेड एक गवर्नर करता था या मुफ्ती करता था, और जो शिकदार होते थे उनके हेड शिख होते थे। आमिल जो है वो हेड होते थे परगना के। जो लैंड ओनर्स होते थे उन्हें हम खुद्स एंड मुकद्दम्स के नाम से जानते थे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे विलेज में। विलेज अकाउंटेंट और पटवारी मेंटेन करते थे, जो भी लैंड, क्रॉप और टैक्सेस जो भी देने हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। Economic and social life. Economy. The Sultan relied heavily on regular income from the land in order to pay the officials, maintain the army, and construct buildings. Different types of taxes such as kharaj or land tax, house tax, etc. were levied to extract revenue. Alauddin Khilji is known for the unique market reforms policy he introduced during his reign. The prices of essential commodities like food grains, sugar, cooking oil, cloth, horse, cattle, and slaves were fixed by him, along with the introduction of standardized weights and measures. अगर हम सल्तनत की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ की बात करें तो इकोनॉमी में सुल्तान ने जो है वो हैविली जो उसकी रेगुलर इनकम होती थी वो लैंड से होती थी, जिससे कि वो ऑफिशियल्स को पे करता था, अपनी आर्मी को मेंटेन करता था, और जो भी बिल्डिंग्स होती थी उनका कंस्ट्रक्शन करता था। बहुत तरीके के टैक्सेस थे उस टाइम पे, जैसे खराज या फिर लैंड टैक्स, हाउस टैक्स, ये सारे थे जो कि रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन में ही लिवाइड थे। अलाउद्दीन खिलजी को अपनी यूनिक मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी के लिए जाना जाता है, जो कि उसने इंट्रोड्यूस किया था अपने रीन में। जो प्राइसेस थे एसेंशियल कमोडिटीज़ के, जैसे फूड ग्रेन, शुगर, कुकिंग ऑयल, क्लॉथ, हॉर्स, कैटल और स्लेव्स, ये सारे उसने फिक्स कर दिए थे। और साथ ही साथ उसने इंट्रोडक्शन दिया था स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स का। एज अ रिजल्ट of commodity price regulation, the Sultan earned the support of the people. The market was under the control of an officer known as Shahana, who maintained a register of merchants and controlled the shopkeepers and prices. The revenue payable dependent on the measurement of the land and its yield. The Quds and Mukaddams also had to pay taxes. Muhammad bin Tughlaq introduced new taxes or local taxes. He continued the demand one half of the produce as tax from the peasants. However, lack of rainfall and famine led to the farmers' inability to pay taxes, which resulted in rebellions against the Sultan. His successor Firoz Shah Tughlaq introduced significant modifications in the tax structure. इससे क्या हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने फिक्स कर दिया था कमोडिटीज़ पे टैक्सेस को, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि कमोडिटी प्राइस रेगुलेशन की वजह से सुल्तान ने लोगों का सपोर्ट अर्न कर लिया था। जो मार्केट थी वो एक ऑफिसर के कंट्रोल में होती थी, जिसे शाहना बोलते थे, जो कि मेंटेन करता था रजिस्टर मर्चेंट्स का और कंट्रोल करता था शॉपकीपर्स और प्राइसेस को। जो रिवेन्यू था वो रिवेन्यू पेएबल डिपेंड करता था जो भी मेजरमेंट था लैंड का और उसकी यील्ड पे। खुद्स और मुकद्दम्स जो थे उन्हें भी पे करना होता था टैक्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है न्यू सेसेस या फिर लोकल टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया था। इसने कंटिन्यू किया था कि जो पीजेंट्स हैं वो अपनी जो भी उनका प्रोड्यूस है उसका 1/2 जो है एज अ टैक्स देंगे। चूँकि उस टाइम पे रेनफॉल कम हुई थी और सूखा पड़ा था, इसलिए फार्मर जो है वो इनेबल हो गए थे टैक्स को पे करने के लिए, जिसकी वजह से सुल्तान्स के अगेंस्ट में रिबेलियंस ज़्यादा बढ़ गए। जो उनके सक्सेसर था फिरोज शाह तुगलक, उसने जो है मॉडिफिकेशन किया था टैक्स स्ट्रक्चर में। सोसाइटी. All the administrative posts in the Sultanate were reserved for the nobles who constituted the ruling class of society. The distinctions of the caste system permeated to all religions. Slaves were bought and sold in huge numbers in the market. At times, they rose up to high posts in the administrative structure and army. The peasants lived in conditions of abject poverty. They were subjected to oppression from revenue officials and their demands for heavy taxes. सोसाइटी की अगर हम बात करें सल्तनत टाइम पे, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी सल्तनत में वो रिजर्व थी नोबल्स के लिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते थे रूलिंग क्लास सोसाइटी में। जितनी भी डिस्टिंक्शंस थी कास्ट सिस्टम की वो परमिएटेड थी सारे रिलीजन्स को। स्लेव्स जो थे वो खरीदे और बेचे जाते थे बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में मार्केट में, और फिर बाद में उन्हें हाई पोस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और आर्मी में दे दिया जाता था। जो पीजेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में जी रहे थे, जो फार्मर्स थे, और उन्हें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन फेस करना पड़ता था जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, और उनकी जो डिमांड होती थी हैवी टैक्स को लेकर के। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।